Namaste, Jai Shri Ram. Welcome to my YouTube channel, Nationalist Indian. Please like, share and subscribe. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The election was held in the year 2021. Trudeau's party emerged as the biggest party in Parliament, but they were short of majority, around 10 seats short. That's when Jagmeet Singh entered the picture. Now, Jagmeet Singh is a self-declared Khalistani. He leads Canada's New Democratic Party. Thanks to Jagmeet's support, Trudeau became Prime Minister. If he leaves, Trudeau leaves. He will be out of power. Do you see why that's a problem? Justin Trudeau needs the support of a Khalistani leader to stay in power. So is it really surprising that he shields Khalistanis? Justin Trudeau is doing the very same thing, supporting terrorists and justifying it as freedom of expression. In 1982, India wanted to extradite a Khalistani from Canada. This man, Talvinder Parmar, he used to lead a terror group called Babbar Khalsa. India wanted his extradition. But Pierre Trudeau, then Prime Minister of Canada, refused to extradite him. And the decision made no sense. Both India and Canada are Commonwealth countries, so technically extradition should have been easy. So no extradition of the Khalistanis. It would prove to be In 1985, Talvinder Parmar planted bombs on an Air India plane. 329 people were killed. Until 9/11, it was the worst aviation attack. ये है वो है, लेकिन ये कैसा रहा है? इनमें कोई जोश भरा वॉर क्राई भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस। एक दुख भरी दास्तान सुनाता हूँ आपको। एक नवजात कुत्ते ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी दिखने में कैसे थे? तो माँ बोली, बेटा एक दिन वो पीछे से आए चुपचाप और चुपचाप पीछे से ही चले गए। रॉ वो पिताजी है सर। रिस्पेक्ट सर। Headlines now is that many of these K terrorists are either being arrested or are getting killed in their respective countries, some in gang actions. The latest being Hardeep Singh Nijjar, who was shot dead at Guru Nanak Singh Gurdwara in the Punjabi-dominated Surrey city in British Columbia province in Canada on Sunday. Take a look at how many K-Force members have either been killed or have been jailed in different actions. The biggest name, as I mentioned, is Hardeep Singh Nijjar, chief of Khalistani Tiger Force, who was shot dead in Surrey in Canada on June 18. He had a bounty of 10 lakh rupees by the NI. That just gives you an indication of how wanted he was in India. Before that, in a curious case, Avtar Singh Khanda, implicated in the attack on Indian embassy in London, died allegedly due to blood cancer. He was also alleged to have trained Punjab Bewaris chief Amritpal Singh. Before that, on May 6, head of Khalistan Commando Force, Paramjeet Singh Panjwar, was shot dead by two assailants in Lahore in Pakistan. He was the most wanted criminal in India, accused of drug and weapons smuggling. This was all following, of course, India's own crackdown on Amritpal Singh, face of the K-Force in India, and chief of Waris-e-Punjab, accused of pushing separatist tendency in the country. And finally, Baltej Singh, nephew of Satwant Singh, killer of Indira Gandhi, who was based in New Zealand, he was arrested in Auckland on drug-related charges. तो आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान के विषय में। खालिस्तान आप सभी जानते होंगे, खालिस्तान मतलब सिख लोगों का एक ऐसा संगठन है, आतंकी संगठन, सिखों का आतंकी संगठन। सिख मतलब उनको सिख नहीं बोला जा सकता है, बट सिख ही हैं जो है। तो उनको क्या है कि खालिस्तान ये 1985 के दौरान ऐसा कुछ चालू हुआ। मेनली आप देखो तो 1980 से चालू हुआ ये। इसमें कुछ सिख लोग सभी शामिल हैं। वो बोलते हैं कि हमें एक अलग, जैसे पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, मुस्लिम है बोल के अलग हो गया, हमें तो अलग देश चाहिए, मुस्लिम हैं हम लोग इसलिए, तो पाकिस्तान अलग हुआ। उसी तरह से इनका भी मांग है कि हमें एक अलग देश चाहिए, इंडिया से अलग चाहिए, तो उसको खालिस्तान बोलते थे। खालिस मतलब अब देखोगे मीनिंग इसका, खालिस्तान मतलब लैंड ऑफ द प्योर, खालिस मतलब प्योर, पाक। तो आपका इसका ऐसे कि उर्दू में आप देखोगे ना खालिस्तान को, तो उर्दू में ट्राई करोगे, ट्रांसलेट करते हो, तो उसका मीनिंग आएगा पाकिस्तान। समझ रहे हो ना? तो ये पाकिस्तान का चलाया हुआ एजेंडा है। आतंकवादियों का एक ग्रुप समूह को उन्होंने फंडिंग किया पंजाब में, और उनको पैसा दिया, बोला तुम इंडिया में अनरेस्ट पैदा करो। और वही 1980 से ये सब चालू हुआ। तो उस समय तो इनको मतलब इंदिरा गांधी थी हमारी प्रधानमंत्री उस टाइम, तो उन्होंने मतलब इन्हें मतलब एक तरह से समझिए कुचल रौन दिया था। उन्होंने गुरुद्वारा तक में मतलब कि वहाँ जो अमृतसर में अपना गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे उन्होंने मतलब सेना भेज दिया था। और उनको उस समय था, देखिए भिंडरेवाला मेन जो था फाउंडर, जो मतलब खालिस्तान का जो स्टार्ट जिसने किया, भिंडरेवाला उसका नाम था, बहुत खतरनाक आतंकी। तो उसने सिखों को गुमराह किया, अपने साथ मिलाना चालू किया धीरे धीरे। जिनको समझ नहीं बोले कि चलो हम लोग ये हैं खालिस्तान, हम लोग सिख हैं,
सिखों का मतलब एक उस समय जैसे महाराजा रंजीत सिंह थे, सिखों का बहुत बड़ा वो मतलब सिख रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने एक समय था जब मुगल्स लोग जब थे उस समय ही महाराजा रंजीत सिंह आए और उन्होंने मुगलों से मतलब अच्छा खासा लड़ाई किया और उन्होंने मतलब समझिए कि पंजाब और उसके सराउंडिंग एरिया राजस्थान हो गया, हिमाचल, इस सब में मतलब उनका कंट्रोल हो गया था ऑलमोस्ट। मेन उनका कैपिटल था लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो वहाँ से ये मांग चालू होता है और फिलहाल तो देखिए उसी से धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया मामला। आतंकी जब भी मतलब ज़्यादा वो लोग आतंक फैलाने लगे, फिर इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, सेना को भेजा, उन्हें पूरी तरह से मतलब धाराशाही एक तरह से होता है ना उस तरह से। लेकिन बस वो एक गलती इंदिरा गांधी जी ने किया कि उन्होंने गुरुद्वारा में, अमृतसर जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल अपना, वहाँ उन्होंने मतलब टैंक चढ़वा दिया सेना का, टैंक वहाँ चला गया और वहाँ पे गोलीबारी हो गया। अकाल तख्त जो उनका तख्त होता है जहाँ इनकी वो पूजा करते हैं, क्या कहते शीश झुकाते हैं, वहाँ गोलीबारी हो गया पूरा। ये मतलब नहीं होना चाहिए था। उससे फिर क्या हो गया, जब एक और मतलब अलग एजिटेशन चालू हो गया सिखों में। मतलब लगा कि हमारे मतलब मंदिर में आके हम लोग का जो सबसे पवित्र है जगह इसको मानते हैं, वहाँ पे आके गोलीबारी, तो सिखों को भी मतलब जो नॉर्मल सिख थे उनको भी ये बात बुरा लगा। तो उसके बाद तो उस समय चलिए मैटर शांत हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी जो अटैक आर्मी को भेज के अटैक करवाई उन लोग ने, तो उस समय मामला ये शांत हो। उसके बाद जो जितने भी खालिस्तानी बचे थे वो सभी धीरे धीरे कनाडा भागने लगे। यहाँ से चालू होता है कनाडा का रूल। तो इंडिया में तो फिर 1980s 84 में फिर सिख दंगा हुआ। उसके बाद उससे और ज़्यादा एजिटेशन बढ़ गया 1984 में जो सिख दंगा हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी का हत्या हो गया। इंदिरा गांधी पहले वो अटैक करवाई उन लोग पे, खालिस्तानियों लोग पे। उसके बाद इंदिरा गांधी का हत्या हो गया खालिस्तानियों के द्वारा ही। उनका जो बॉडीगार्ड था वो सिख था एक, उसने वो खालिस्तानी मानसिकता से प्रभावित हो गया और उसने ही उनकी हत्या कर दिया। तो इस बात से दुखी हताश हो गया पूरा तरह से कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने सभी प्लानिंग करके दिल्ली में 1984 में सिखों को मरवाया। 2-3 दिन तक कंटिन्यू पूरे दिल्ली में मतलब सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों का उसमें जान गया सिखों का। और बहुत ही निशान सत्य, मतलब उसको बताया नहीं जा सकता किस तरह से हुआ था। तो ये कांग्रेस का भी पाप है, आप बता। और उसमें क्या था ना कि फंडिंग भी लोग कर रहे थे। ये जो भिंडरावाला ने जो आतंक जो हुआ, ये खालिस्तान मूवमेंट जो चालू, इसमें आप देखिए कल परसों मैं देख रहा था कि एक रॉ के पूर्व अधिकारी है, सरदार जी है वो भी, उन्होंने बताया है कि मतलब एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने बताया, कमलनाथ जो है अपना कांग्रेस का एक बड़ा जाना माना नेता है, मध्य प्रदेश का वो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, पहले भी था, अभी शिवराज सिंह से पहले वही था चीफ मिनिस्टर। उसने और कांग्रेस के एक आध 2 नेताओं ने ये लोग फंडिंग कर रहे थे। कमलनाथ को उन्होंने नाम लिया स्पेसिफिकली कि ये फंडिंग दे रहा था, भिंडरावाला को फंडिंग कर रहा था। खालिस्तान का जो मूवमेंट भिंडरावाला चलाया उसको वो फंडिंग कर रहा था कमलनाथ, कांग्रेस वाले ही। और इन्होंने फिर उनके ऊपर ही अटैक करना चाहा। जब देखा कि तो हाथ से निकल गया, हमारा बात ही नहीं सुन रहा है, हमारे ऊपर ही हमला कर रहा है, तो उनको एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने ले लिया। फिर दंगा भी, फिर मंदिर में उन लोग का अटैक हो गया, गोल्डन टेम्पल में इन्होंने करवाया सरकार ने, भारतीय सरकार ने। फिर सिख दंगा 1984, इंदिरा गांधी का मौत हो गया, उसका गुस्सा इन्होंने कांग्रेसियों ने 1984 में दंगा करके मरवा के सिखों को उसका गुस्सा उतर ये लोग मतलब बदला लिए एक तरह समझिए। फिर कनाडा ये लोग सभी चले गए ऑलमोस्ट, शांति से हो गया, मतलब पंजाब शांत। तो कनाडा में धीरे धीरे ये वहाँ मूवमेंट चलता रहा। फिर कनाडा में 1985 में वहाँ खालिस्तानियों ने एयर इंडिया का प्लेन था, उसको इन्होंने उड़ा दिया, बम डाल दिया था उधर, और वो ब्लास्ट खत्म। 329 लोग का उसमें जान चला गया। उसमें से 239 लोग कनाडा के ही थे। तो कनाडा सरकार ने उस समय जांच जो भी करवाया है उन लोग, मतलब समझ रहे हो, कनाडा जो है ना, एक तरह से आप देखो आज के समय में ना, कनाडा पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा हो गया है भारत के लिए। पाकिस्तान जैसे आतंकियों को पालता है, पोसता है,
उनको फंडिंग करता है, उसी तरह से कनाडा भी उससे ज़्यादा हाई लेवल पे कनाडा भी जा रहा है। ठीक है, और अभी मैं बात कर मेन मुद्दा पे आते हैं अभी कि कल नहीं सॉरी परसों वहाँ कनाडा का जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, जिसको मतलब LGBTQ ये सब से फुर्सत नहीं है। LGBTQ का मतलब बहुत बड़ा वो ये एक्टिविस्ट बन गया है। LGBTQ हर जगह जिधर भी जाएगा उधर बोलेगा जेंडर मामला, जेंडर सब जेंडर मेरा मुद्दा वही है, जेंडर इक्वालिटी LGBTQ। ठीक है, मेल फीमेल वाला नहीं बोल रहे हो, LGBTQ। ठीक है, तो उसमें मेरे को ऐसा खबर भी है बहुत, जो देखो अगर तो ऐसा भी खबर है कि वो खुद भी शायद गे है या क्या है, क्योंकि उसकी बीवी अभी छोड़ के चली, तलाक दे दी उसको। G20 में आया था वो इंडिया, उसके 2-3 दिन पहले उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, तलाक दे दी। तो वो आदमी जो है जस्टिन ट्रूडो परसों वो बयान देता है अपना पार्लियामेंट में खड़ा होकर कि इंडियन गवर्नमेंट ने रॉ के थ्रू हमारे एक सिटीजन को निज्जर, जिसका नाम था खालिस्तानी, कुख्यात खालिस्तानी आतंकी, जो इलीगली गया था वहाँ, इलीगली कनाडा में गया वो 1997 में इंडिया से भाग के। इंडिया में कुछ कांड, उसका नाम कांड हुआ, खालिस्तानी था, खालिस्तानी मानसिकता वाला, तो इंडिया में उसको केस वेस लगाया पुलिस। तो यहाँ से भागा वहाँ 1997 में रवि सिंह करके, नकली पूरा फर्जी डॉक्यूमेंट बना के रवि सिंह करके, और वहाँ वो गया कनाडा। फिर वहाँ उसको नागरिकता मिला नहीं उस समय, तो प्लम्बिंग का फिर काम करने लगा और धीरे धीरे फिर वैसे करके वो गुरुद्वारा का प्रमुख बन गया एक तरह से, एक दिन मतलब कुछ समय बाद। और उसके बाद उसको फिर से ट्राई किया वो नागरिकता के लिए, तो भी नहीं मिला। फिर एक वहाँ की औरत से शादी कर लिया, कैनेडियन औरत से। उसके बाद फिर से ट्राई किया नागरिकता के लिए, तो शायद उसको नागरिकता मिला। और उसके बाद वो खालिस्तानी मूवमेंट में पूरा तरह से वो लिप्त था। तो उसका हत्या हो गया था कुछ दिन पहले, उसको वो चला गया, स्वर्गवास हो गया बेचारे का। खालिस्तान करते करते खालिस्तान पहुँच गए, इमेजिनरी खालिस्तान, स्वप्न वाला खालिस्तान में वो पहुँच गया। तो उसमें वो आरोप लगाया कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में अपने, कि भारतीय सरकार ने अपने रॉ जो उनका एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके थ्रू इसका ये मर्डर करवा दिया, हमारे नागरिक को मरवा दिया। तो इसका हम लोग पड़ताल करेंगे और अमेरिका से और ब्रिटेन से, जो ऑस्ट्रेलिया से, जो मतलब डीप स्टेट्स जो है एक तरह से, जो बोल सकते हैं दुनिया का जो बॉस लोग हैं, उनसे हमने बात किया है, सबको हमने बताया अपना जो मैटर है। ठीक है, एक तरह से इंडिया को धमकाने की कोशिश की है। तो इंडिया आज के टाइम में आप जानते हो अपना विश्व गुरु बनने वाला है इंडिया की। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, वो तो अच्छा से बैंड बजाना जानते हैं सबका, अमेरिका तक का बैंड बजा दिया। तो कनाडा क्या है, कनाडा तो मतलब समझिए एक बच्चा जैसे हो गया, उसका प्रधानमंत्री सही में बच्चा है। इंडिया ने और क्या हुआ कि उन्होंने एक्शन भी कुछ लिया, कैनेडियन सरकार ने। हमारे जो हाई कमीशन, वहाँ जो इंडियन हाई कमीशन जो है कनाडा में, वहाँ से रॉ का जो हेड था, उनको उन्होंने बोला कि आप हमारा देश छोड़ दीजिए, उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया। तो भारत में जैसी खबर पता चला, इंडिया ने भी, आपने देखा होगा न्यूज़ कि वहाँ का इंडिया में जो कनाडा का हाई कमीशन है, वहाँ का हाई कमिश्नर को बुलाया उन्होंने। वो आया और 5 मिनट के अंदर, मतलब 5 मिनट बस, कार से उतरा, अंदर गया, 5 मिनट में फिर वो वापस। 5 मिनट मतलब टोटल टाइम कार में उसका उतरा, उस समय से 5 मिनट काउंट होता है। और वो अंदर ऑफिस गया। अब उसको क्या बोला क्या नहीं बोला कि अंदर, वो बाहर तुरंत 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ही वो बाहर आ गया, एकदम मस्त गुस्सा में, एकदम चलता हुआ, एकदम तमाता हुआ ऐसे। और उसके बाद वो रिपोर्टर था ये नहीं कही, उससे पूछ रहा व्हाट हैपेंड सर प्लीज टेल मी सर व्हाट हाई कमिश्नर टोल्ड यू। वो कुछ बोला नहीं, बस अंदर घुसा कार में, दरवाजा जोर से बंद किया ढंग से, और उसके बाद वो निकल लिया गुस्सा में, गाड़ी में एकदम फुल स्पीड में। सोचिए उसको क्या बोला गया होगा। बोला गया, मेरे सब को लगता है ऐसा बोला गया है कि देखो बेटा, तुम अब जाओ, तुम लोग को समझा के थक गए, तुम लोग समझता नहीं है, तो अब निकल जाओ, अपना बाप के पास जाओ उधर ही। बाप को जब बोलो कि भगा दिया मेरे को भारत से। एक्चुअली उसको 5 दिन का बोलो कि 5 दिन में तुम्हारा
तुम्हारा जो है तुमको इंडिया छोड़ देना है भाई, जाओ यहाँ से निकल जाओ, बाहर कर रहे तुमको, ठीक है। तो उन्होंने आरोप तो लगाया। और एक्चुअली क्या हो रहा है, खालिस्तानी लोग जितना भी रह रहे हैं सभी सब कनाडा में है, खालिस्तानी लोग जितना है वहीं से लोग फंडिंग वो कर रहा है इंडिया में। अब तक जब फार्मर अलग अलग दिखते हो, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ उसमें खालिस्तानी लोग का झंडा लेके सब घूमता था बहुत सा लोग। शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी खालिस्तानी झंडा लेके घूम रहा था। 26 जनवरी को अपना पिछले साल आपने देखा, 26 जनवरी पिछले नहीं 2001 कोरोना जब था 2021 में, 2 साल का 2 ईयर बैक, तो उस समय 26 जनवरी के दिन मोदी जी वहाँ से राष्ट्रपति अपना तिरंगा फहराए और उसके बाद किसान आंदोलन उस समय चालू था। तो ये लोग सब ट्रैक्टर लेके उधर पहुंच गए, ट्रैक्टर लेके और का अपना रेड फोर्ट से तिरंगा निकाल के, दीप सिद्धू जो था पंजाबी सिंगर, वो दीप सिद्धू चढ़ गया ऊपर और वहाँ से साला ये तिरंगा निकाल के खालिस्तानी झंडा उधर लगा दिया, ठीक है। तो उसी समय से इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वे लोग मतलब टारगेट पे ले लिया अपना भारत सरकार, बोला इन लोग का बहुत हो गया, अब इन लोग को समझाना पड़ेगा अच्छा से। वहाँ से फिर प्लानिंग चालू होता है भारत सरकार को। उसके बाद इन्होंने NIA ने मतलब एक लिस्ट जारी किया बहुत सारे 50-60 खालिस्तानियों का, और उसमें से सब ऑलमोस्ट कनाडा में रह रहे थे, कुछ इंडिया में, जैसे दीप सिद्धू था बेचारा। तो कुछ दिन बाद ना धीरे धीरे इन लोग का खात्मा चालू होने लगा। दीप सिद्धू कार एक्सीडेंट में मर गया हो, लगता है वो जो कांड जो किया हो 26 जनवरी को, उसके 5-6 महीना बाद वो पता चला कि कार उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वैसे करके फिर धीरे धीरे अभी पिछला 5-6 महीना पहले खालिस्तान जितना आतंकी लोग हैं एक एक करके सब मरते जा रहा है, अजीब अजीब, मतलब कोई खाना खा रहा, मतलब कोई मतलब बीमार था उसमें मर गया, छोटा मोटा बीमारी था उसमें मर गया, हो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को ठोक के चला गया कोई। अभी सिर्फ कनाडा में नहीं, पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में लाहौर, कराची, ये सब जगह में भी खालिस्तानी लोग था, वहाँ पे मतलब ये लोग को कोई मार के निकल गया। अब सोच सकते इसमें कुछ हो ना हो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट समझदार है लोग, समझ रहे हैं, आप भी खुद भी समझ सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो ट्रूडो जो इंजाम लगा है वो तो एक तरह से आप देखोगे, अगर उससे तो मोदी जी को डबल फायदा हो, उससे मोदी जी को और एक फायदा हो गया बहुत ज़्यादा। अब वो बात को इंडिया में पता चला है तो लोग बोल रहे हैं वाह, इंडिया मतलब एक समय था जो रसिया अपना अमेरिका ये सब कंट्रोल करता था इंडिया को, ठीक है। और आज इंडिया मतलब कनाडा पाकिस्तान में तो घुस के मारा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो छोटा सा, लेकिन कनाडा में जाके घुस के मार के आ गया। सोच रहे कितना बड़ा मतलब मोदी को इससे फायदा होने वाला है। उसको समझ नहीं आया ट्रूडो को, सोचा ऐसा बयान दे देंगे तो मेरा जो इधर एक्चुअली उसका क्या ट्रूडो का वहाँ खालिस्तानी एक नेता है, जगवीर सिंह ऐसा कुछ है उसका नाम, उसका एक पार्टी हुआ पॉलिटिकल पार्टी, उसके पास 20 सीट चुनाव में जीता है पिछले बार। और ट्रूडो का जो है उसको मेजोरिटी नहीं आया था, उसका सीट कम था, मेजोरिटी में वो आया नहीं तो सरकार नहीं बना पाया। तो जो है ना खालिस्तानी जो है जगमीत सिंह जाना है उसको, जगमीत सिंह, तो उसका पार्टी उसको सपोर्ट दिया, 20 सीट उसके पास था तो उसको सपोर्ट किया ट्रूडो को, तो दोनों का फिर ट्रूडो का सरकार बना। तो इस पे भी कहा जा रहा है कि वो जगमीत सिंह का ही किया जा रहा है सारा, उसने इसको प्रेशर दिया ट्रूडो को कि तुम मेरा देखो लोग सब मर रहा है, खालिस्तानी लोग एक एक करके सब मरते जा रहा है, अब तक 6-7 मर चुका है। और आज अभी लेटेस्ट परसों तो बयान तो दे दिया संसद में कि मार रहा है मेरा रहो सबको। और आज फिर से अभी तुरंत जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, चल रहा है अभी सब जगह, एक और सुक्खा करके है खालिस्तानी गैंगस्टर था पंजाब का, पंजाबी गैंगस्टर बहुत बड़ा, और वो खालिस्तानी लोग को सपोर्ट कर रहा था, उसको फंडिंग दे रहा था, हथियार सप्लाई इसी तरह से कर रहा, मदद कर रहा था खालिस्तानियों का, उसको टपका दिया। तो समझ लीजिए इंडिया की तरफ से मैसेज एक तरफ से तो मतलब है क्लियर, तुम बोला ना अब तुम देखो हम घुस के मारेंगे, तुमको जो करना है, तुमको जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो, देखते हैं कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा, ठीक है। कि ना इस समय इंडिया का ऐसा पोजीशन है ना, आप लोग सभी जान रहे होंगे कि
न अमेरिका हमें कुछ बोलेगा, न रसिया, जिसके पास भी जाए और उसको बोलेगा अरे यार शांत से बैठो बैठो शांति से, क्या उछल कूद बचा रहा है, अरे मोदी जी से जाओ बातचीत करो थोड़ा, क्यों इधर उधर रो फिर रहे हो, गा रहे हो, रोना गाना बंद करो, मोदी जी के साथ बैठो, उनके साथ जो बोल रहे हो करो चुप से। खालिस्तानियों को ये सब जो है ना, जो बैठा के रखे हो सबको, फौज बना के कनाडा में पूरा, ठीक है, इन लोग को वहाँ भेजो, भारत हवाले कर दो भारत सरकार के, उनका उधर इन लोग का इलाज करेगा अच्छा से मोदी जी। लेकिन अपने यहाँ रखोगे तो तुम तो ठोकेगा ही तुम्हारे को, कोई दिक्कत है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपना देश को देखना है पहले। तुम्हारे लिए हम अपना देश को नहीं बर्बाद करना चाहते, क्योंकि इस वक्त सारा लोग, इंडिया जो है ना, सारा लोग, अब पूरा वर्ल्ड कंट्री का देख लो, इकोनॉमी उसका पूरा एकदम हालत ख़राब है, लेकिन इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जिसका इकोनॉमी मतलब सबसे मतलब सब डूबा हुआ है, और इंडिया मतलब उभर रहा है और स्पीड में उभरता जा रहा है। सबको इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, सारा कंपनी जो है फॉरेन, अपना यूएस का बड़ा कंपनी हो गया, यूके का, तो सबको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इंडियन कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करेगी, और उनका भी कंपनी जो है उन लोग भी यहाँ के इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, तो उससे उनको प्रॉफिट होगा, उनका इकोनॉमी थोड़ा अच्छा खासा मतलब उसमें फ़ायदा होगा। कोई अपना रिस्क लेगा नहीं अभी कनाडा का चलते, और कनाडा खुद उन्होंने अपना जो भी हुआ है उनके साथ हो रहा है अभी, तो उन्होंने खुद से ये सब सारा किया है। उनको क्या ज़रूरत है खालिस्तानियों को रखने के, वहाँ आतंकवादियों को? एक तरफ से मैं बोल रहा हूँ ना कि पाकिस्तान जो है वो है ठीक है, लेकिन कनाडा उससे ज़्यादा खतरनाक देश हो चुका है अभी तो फिलहाल भारत के लिए ही है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा दुनिया के लिए खतरा बनेगा अगर इसी तरह से चलता रहा तो, क्योंकि वो आतंकवादियों को रख रहा है सभी खालिस्तानियों को, वो सब आतंकवादी है। तो हो सकता है कनाडा जो है ना, कनाडा बनेगा खालिस्तान, हो सकता है। अभी वो जो बोल रहे हैं खालिस्तान, तो हो सकता है आगे जाके कुछ 10-15 साल में पता चल रहा है कि नारा लगा रहा खालिस्तानी, कनाडा बनेगा खालिस्तान, जैसे पाकिस्तानी बोलता है ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वैसे ही उधर नारा लगने लगेगा कि कनाडा बनेगा खालिस्तान। अब फिर इन लोग जो कुछ नहीं कर पाएगा, कि अब देखो तो मतलब ऑलमोस्ट वहाँ सिख पॉपुलेशन 7.7% है अभी, और सब वैसे ही है, सब ये लोग अधिकतर खालिस्तानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब ये लोग मतलब गैंगस्टर, ड्रग्स ये सब बेच रहा है। खालिस्तानियों को फंडिंग उधर ही से आता है ना, कि ये लोग ड्रग्स बेच रहा है, और उल्टा सीधा ये लोग काला धंधा सभी कर रहा है, हवाला ये सब, उससे इन लोग को फंडिंग पैसा मिलता है। और इन लोग ने मेन मुद्दा है कि सरकार को इन्होंने समर्थन दिया हुआ है, ट्रूडो के सरकार को, जहाँ से मतलब अगर कुछ ट्रूडो उनका बात नहीं मानता है तो समर्थन वापस लिया, उसका सरकार गिर गया। तो इस सरकार बचाने के लिए अपना देश को दाव पे लगा रहा है, खालिस्तानियों को बेच रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बस उसका एक ही मुद्दा है, वो हर वक्त कोई भी उसका रिपोर्टर पूछता है आपको G20 में आया, उससे पूछा मुद्दा क्या है, तो जेंडर इक्वालिटी, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और उसका अजीब देखोगे कमेंट में जो भाषण है सब LGBT को हमेशा करते रहेगा। अरे यार बाहर आजा, कौन दुनिया में रह रहा है एक टोटो भाई, LGBT करते रहेगा सिर्फ, इसीलिए पैदा हुआ है। अब उसको समझाना पता नहीं। और उसका देखिए बीवी छोड़ के चली गई है, उसका बेटा है वो अपना इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हो, रील्स पे रील्स बनाते फिर रहा है। इंडिया आया अभी G20 में, तो बाप तो बाद में निकलेगा, पहले बेटा बाहर निकला और हाथ हिला रहा है ऐसे करके। बाप हाथ नहीं हिला रहा, प्राइम मिनिस्टर जो है कनाडा का हाथ नहीं हिला रहा, वो बेटा हाथ हिला रहा है जैसे कि देखो आ गया, देखो स्टार, रील्स बनाएंगे, कुछ हो रहा है रील्स बनाएंगे। तो ऐसा उनका कनाडा का भी हाल, बहुत अजीब व गरीब स्थिति चल रही कनाडा की। उनको समझ नहीं आ रहा है किससे उन्होंने पंगा ले लिया है, क्योंकि इंडिया के सामने कनाडा कुछ नहीं है अभी आज के टाइम में, ना इकोनॉमी में ना सेना में, तो कहीं भी नहीं सेना के मामले में। इंडियन आर्मी और कनाडा आर्मी तो मतलब एक है, मतलब समझ लीजिए आसमान, तो एक है पाताल। देखिए अब आगे क्या होता है इस मुद्दे पे। भारत सरकार तो अभी बहुत ही मतलब कड़क एक्शन में लेने वाली है, मतलब बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है भारत सरकार। उन्होंने क्योंकि ऐसा एलिगेशन लगा दिया बिना सबूत का ना, तो सबूत होता कुछ पेश करता, ठीक है हाँ देखो मेरे पास सबूत है, बिना सबूत के बिना कुछ के ऐसे आरोप लगा दिया कि मेरा लोग को मरवा रहा है, कैनेडियन को मरा रहा है अपना अधिकारी एजेंसी के थ्रू।
और अपना उनको निकाल दिया, अधिकारी को अपना निकाल दिया वहाँ से, भारत का रॉ के हेड में। ये बहुत बड़ा उन्होंने कदम ले लिया। तो भारत ने उनको अब अच्छा से बोला ठीक है बेटा तुम ऐसे नहीं सुधरेगा, अब तुमको अच्छे से सुधारेगा। तुमको समझा के थक गए। G20 में आया तब भी तुमको बोले, इतना अच्छा से क्लास लिए, समझाए कि तुम मत करो ये सब, खालिस्तानियों को मत सपोर्ट करो, लेकिन तुम सुना नहीं। अब देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हैव अ नाइस डे।